Okay, good morning everyone. So as I told you now that we had covered the topics in regards to the disintegration of USSR, and also we had seen the factors which led to the disintegration of Soviet Union, or we can say USSR. The topic which we shall be covering today is consequences of disintegration. We have seen the factors which led to the disintegration, collapse क्यों हो गया. Now we have to see after its collapse, after its disintegration, what were the consequences, उसके नतीजे, उसका impact क्या क्या पड़ा सोवियत यूनियन में. So we are going to see, क्योंकि it was not a smooth transition. कोई छोटा सा गेम नहीं था कि पहले हम we were following a communism, now we have opted for capitalism. So this transition had many consequences. One by one we are going to read these. These I have written in very short. Basically we are going to cover the NCERT book. This is just for your revision. I would say short points लिखे जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ इसके अंदर ये points we have to mention. So I will start from here. At last we will see and cover these points कि ये include हुए या नहीं हुए. So is the topic clear which we are going to cover today? So consequences. Let's start this topic. The collapse of the second world. Whenever I am saying the second world, it means I am talking about USSR. And the socialist system in Eastern Europe has profound consequences on the world politics. After its disintegration, there were lot of consequences, lot of unrest if we see at the global platform. बहुत सारे changes, political, economic, social changes we could see. बहुत सारे changes, transformations हमने देखे when there was a disintegration. तो वो एक छोटा सा event नहीं था. Disintegration होना मतलब एक super power का collapse होना. It means entire world में political system, economic system, social system में there were huge changes. So basically in consequences we are going to read those consequences, those changes, those transformations. Let us note there are three broad kind of enduring changes. So basically we are going to see three type of important transformations, important changes after disintegration of USSR. So the very first one is the first paragraph. Point wise you can remember them. First of all, it meant that end of Cold War confrontation. सबसे पहली बात अभी क्या समझ आती है? If I am saying disintegrate हो गया USSR, it means previously there were two superpowers. एक disintegrate हो गया तो what can we conclude from it? There were two powers. These were the two superpowers. इसमें से ये वाला disintegrate हो गया Eastern Alliance. This is the sole superpower. इसकी ही that is why the next chapter is US hegemony. It means उसकी ही दादागिरी, उसकी ही influence was there at the global platform. It means world war, economically, politically, socially, military, technology, हर चीज में dominant कौन था? US था. It means जब ये खत्म हो गया तो Cold War क्या हो गया? End हो गया. इसीलिए first point you can say it meant that the end of Cold War confrontation. इन दोनों के बीच में जो confrontation था, conflicts थे, tensions थे, competition था, वो क्या हो गया? End हो गया. अब ये sole super power है. Then the other one, the ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. पहले क्या इशू चल रहा था हमारा? Capitalist system is the best or the socialism or the communist countries are the best. इन दोनों में यही चल रहा था. ईस्ट और वेस्ट में they said, yeah, they believed that capitalist system was the best form of political, social and economic management of any society, whereas they believed and had trust and faith on कम्युनिज्म. बट इसके बाद क्या हो गया? जब ये एंड हो गया, इट मींस ये एंड क्यों हुआ था? एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जयश्री? इट्स इंटरनल वीकनेस. पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट हैप्पी. उनकी जो नीड्स थी, डिमांड्स थी, फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी जो गवर्नमेंट, वो कैसे बेस्ट हो सकती है? तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया दैट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड. ये इतनी डोमिनेंट नहीं है, ये इतनी अच्छी नहीं है, अदरवाइज ये डिसइंटीग्रेट क्यों होता? There was no military attack on USSR from outside. उसकी इंटरनल वीकनेस की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ. इंटरनल वीकनेस किसकी वजह से थी? उसका एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था. इट मींस कम्युनिज्म जो सिस्टम था, कम्युनिस्ट एक ही पार्टी थी, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हुआ कर सकती थी. तो वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में डिटेल में. सो यहाँ पे ये पता चल रहा है आइडियोलॉजी कौन सी. अब कॉन्सिक्वेंस क्या आया? इस आइडियोलॉजी को लोग डोमिनेंट मानने लगे, कैपिटलिज्म को. Since this dispute had emerged, the military of the two blocs had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons. Next point, इसी first point के अंदर ही तीन चार points हैं. You can see. तो एक हमने कौन सा देख लिया? Cold War confrontation end हो गया. दूसरा हमने क्या देख लिया? Ideology dominant कौन सी थी? Capitalism थी जो prove हो गया. Third, arms race चल रही थी. From the Cuban Missile Crisis we have seen both of the sides, both of the superpower, both the alliances were in a race of stocking up the weapons and arsenals and arms. मिलिट्री इक्विपमेंट्स इसी रेस में लगे हुए थे दोनों.
मोस्ट पावरफुल बनने के लिए, पर इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही ये आर्म रेस भी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। और दो उससे पहले बहुत सारी ट्रीटीज वो साइन कर चुके थे आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल उनके बीच में रेस और कंपटीशन था। बट इसके कोलैप्स होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद, ये जो आर्म की रेस थी जो बहुत डेंजरस हो सकता था फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल ऑन अर्थ फॉर ऑल द कंट्रीज ग्लोबली, तो वो भी क्या हो गया, एंड में आ गया, हॉल्ट पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा तरीके से खत्म हो गया था, तो इन्होंने भी अपने आर्म्स को बढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। The end of the confrontation demanded the end of arm race and the possible new peace. So अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीस को स्टैब्लिश करना, जो इनके अपोजिशन में जो इनके राइवल्स थे वो एंड हो चुके थे, कोलैप्स हो चुके थे, तो इन्होंने आर्म्स को वहीं पर स्टॉप कर दिया। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही 3-4 पॉइंट आपके कवर हो रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सेकंड जो एक मेजर इन्होंने कंपोनेंट लिया है व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सेकंड इज, इतना फर्स्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? Lakshmi, what are the 3 points I have discussed? Now I want to ask the questions. Continuously मैं बोलता रहता हूँ, कोई response? Yes, but what are the 3 consequences which we see after the disintegration? Only if you are not comfortable with English, हिंदी में आप explain कर सकते हो, not a problem. I want कि concept तो clear हो. हाँ, किनके? Okay, and प्रीति? End of Cold War confrontation. Yes. Capital ideology Was most dominant. It was proved that it was dominant है, और arm race was arm race end हो गई. Okay, ठीक है, sit down. Second, power relations in the world politics change, and therefore the relative influence of the ideals and institutions also change. The end of the Cold War left open only 2 possibilities: either the remaining superpower would create the unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system, thereby bringing a multipolar system where no one power would dominate. अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर, तो यहाँ पे ये सोल यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड के पास कि वो कैसा वर्ल्ड बन सकता था, मल्टीपोलर बन सकता था। इस टाइम पे हमारा अगर ये अर्थ था, ये 2 पोल्स में चल रहा था, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो यहाँ पे चांसेस थे और कंट्रीज मिलकर के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते थे विच वुड हैव मेड दिस वर्ल्ड एज अ मल्टीपोलर, जिसमें एक की मोनोपोली नहीं होती, एक का डोमिनेंस नहीं होता, सारी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशली, कल्चरली, सारा डोमिनेंस किसका था, यूएस का था। बट ये एक ऐसा टाइम था, ट्रांजिशन में यहाँ पे चेंज हो रहा था, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, कुछ कंट्रीज से मिलकर के ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ग्रो कर सकते थे कि हमारा वर्ल्ड कैसा बन सकता था, मल्टीपोलर बन सकता था। बट इस अपॉर्चुनिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बन पाए, और यूनिपोलर वर्ल्ड बना हमारा किसके अंडर, यूएस के अंदर। इस ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हैं 1991 के बाद, जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो चांस था कि हमारा वर्ल्ड को हम क्या बना सकते थे, मल्टीपोलर बना सकते थे, जहां पे कोई एक डोमिनेंट नहीं होता, इक्वालिटी होती, किसी एक का डोमिनेंस नहीं होता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, डोमिनेंस किसका आया, यूएस का ही आया। अच्छा, उसको फिर से रीड कर रहा हूं, ऊपर से ही देखिए वाला सेकंड पैराग्राफ। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। जब कोल्ड वॉर एंड होता है, 2 पॉसिबिलिटीज थी वर्ल्ड में, ईदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट, जो रिमेनिंग सुपर पावर थी यूएस, वो डोमिनेट करेगी एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम, और दूसरा ऑप्शन ये था, डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स in the international system, thereby bringing a multipolar system. ये ऑप्शन था, but ऐसा नहीं हुआ, where no one power could dominate it. As it turned out, the US became the sole superpower, backed by the power and prestige of the US. The capitalist economy was now the dominant economy. US तो dominant था, plus इसके साथ क्या हुआ, capitalist जो economy थी was the most dominant economy or the ideology around the world after the disintegration of USSR. Institutions like the World Bank and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. अब इसके अंदर से, यूएस के अंदर से बहुत सारी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज निकली थी, around 15 countries which were the republics. Now these countries were individually supported and promoted financially by World Bank and IMF. ये 2 इंस्टीट्यूशंस याद रखना है, इसी टाइम पे इमर्ज होते हैं जब डिसइंटीग्रेशन होता है, तो दे कम इनटू एक्शन, दे कम इनटू प्ले, आईएमएफ और
वर्ल्ड बैंक क्या देते हैं, लोन देते हैं किनको, इन छोटी छोटी कंट्रीज को जो डिसइंटीग्रेट हुई है या कोलैप्स होकर के अलग हुई है किससे, यूएसएसआर से, इनको स्टेबल बनने के लिए ट्रांजिशन, अगर इनको कम्युनलिज्म से अपनी सोसाइटी को अपनी इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट करना था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाना था, तो इनको लोन की पैसे की जरूरत थी, दैट वाज प्रोवाइडेड टू देम बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। याद रखना दोनों इंस्टीट्यूशन के नेम। Institutions like the World Bank and the International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. अब एक और चीज प्रूव हो गई, अगर हमें पॉलिटिकल लाइफ को प्रूव करना है कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो वो क्या होता है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी। वो भी यहाँ पे मैंने लिखा है लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड, ये प्रूव हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लाइफ जो बेस्ट हो सकती है, वो किसके अंडर हो सकती है, लिबरल डेमोक्रेसी, जो यूएस फॉलो करता था। ये क्या फॉलो करते थे, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है। थर्ड, तो ये दो चीज कवर हो गई, इसके अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट है हर पॉइंट के अंदर। And the third now major factor is the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. End of Soviet bloc. खुशी, you're looking outside. ये सोवियत ब्लॉक का एंड होना मतलब बहुत सारी वर्ल्ड एरिना में बहुत सारी न्यू कंट्रीज का इमर्जेंस हुआ है। पहले दे वर अंडर यूएसएसआर, अब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट नई नई कंट्रीज ऐड हुई हैं हमारी वर्ल्ड में। All these countries had their own independent aspirations and choice. अब इनकी एक जैसे आइडियोलॉजीज नहीं थी, एक जैसे थॉट्स नहीं थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ सेम नहीं थी। They had different aspirations for their political, social and economic life. सब एक दूसरे से डिफरेंट थे। One thing was common, they wanted to follow the ideology of capitalism now. Okay. Some of them, especially the Baltic and the East European states. इसमें भी यूएसएसआर में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक डिवीजन है, याद रखना मैप आप लोग को मैंने बोला हुआ देखना। ये येलो पार्ट इज यूएसएसआर बेसिकली, ये कुछ कंट्रीज यूरोप की वर ईस्टर्न यूरोप वाज विद यूएसएसआर, बट एक यहाँ पे बाल्टिक ये है रिवर है, ठीक है, ओशन की साइड में, तो उसके पास जो ये है एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये तीन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि जो इसकी साइड से ये रिवर जा रही है बाल्टिक स्टेट्स है, इसीलिए इसको हम नदी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि बाल्टिक रिवर के आसपास है, तो इनको बोलते हैं तीन को बाल्टिक स्टेट्स। तो आएगा बाल्टिक स्टेट्स मतलब विच इज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ये ईस्टर्न यूरोप हो गया। ये हमारा जो नीचे का काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, हाँ यहाँ पे ये 1 2 3 और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये जो एक जैसे नेम है, ये हमारा सेंट्रल एशिया, ये भी इसका पार्ट था यूएसएसआर का। तो इसमें डिवीजन है, यूएसएसआर में इसमें सेंट्रल एशिया आ रहा है, बाल्टिक स्टेट्स आ रही हैं, ईस्टर्न यूरोप आ रहा है, और ये रशिया तो था ही। तो जब रशिया का अगर यूएसएसआर का पूछा जाता है तो आपको उसका एक डिवीजन कैटेगरी पता होनी चाहिए, यूएसएसआर प्लस सेंट्रल एशिया में ये 5 कंट्रीज, 3 कंट्रीज किसकी, बाल्टिक स्टेट्स प्लस हाफ जर्मनी के, बर्लिन के आगे वाला क्या था ईस्टर्न यूरोप। तो याद रखना ईस्टर्न यूरोप, ये 5 चीजें मिलकर के यूएसएसआर को बना रहे थे। क्या हो गया दृष्टि, व्हाट हैपेंड, ठीक है। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक meant the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and choices. Some of them, especially the जो वर्ड आ रहा है, especially the Baltic and the East European states wanted to join the European Union and become part of North Atlantic Treaty Organization. अब जो ये बहुत क्लोज थे, जो जर्मनी से डिवाइड हुआ था, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक स्टेट्स, जो मैंने 3 बताई हैं, ये किसका पार्ट होना चाहते थे, यूएस अलायंस का। ऑल्दो कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, बट जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस थे, नाटो था, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बन गया था पूरा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जब हम पढ़ेंगे उसमें हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो स्टेट्स थी जो मैंने यूएसएसआर के साथ थी, जो यूरोप वाला पार्ट था, वो किसके साथ मर्ज होना चाहता था, नाटो का पार्ट बनना चाहता था और यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता था। अब अगर कोई बाल्टिक स्टेट्स बोलेगा तो आपको पता होगा, ऊपर की जो ये 3 स्टेट्स हैं, इनको हम बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। The Central Asian countries, Central Asian में बता दी मैंने, जो 5 countries है नीचे, Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location. I hope you can understand this. You will be able to understand if you will see the map. They were taking the advantage of their location, geographical location, and continue their close ties with Russia. Also to establish ties with West, the US, China and other. अब इनकी लोकेशन कैसी है देखेंगे। जो सेंट्रल डिसइंटीग्रेट हो गया था, पर ये कंट्री इकोनॉमिकली बहुत वीक थी,
जब यूएसएसआर के अंडर थे तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर फॉर देयर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी की, हर चीज के लिए। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इनको क्या हो गया, फंडिंग मिलना, हेल्प मिलना, प्रोटेक्शन, सारी चीजें मिलना बंद हो गई। तो दे प्लेड अ वेरी स्मार्टली बिकॉज यहाँ पे उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाया। दे कंटिन्यू टू हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, बॉर्डर लग रहा है रशिया से अच्छे रिलेशंस रखे, प्लस चाइना से बॉर्डर लग रहा है कंट्री का, ताजिकिस्तान, ये इधर उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज इन्होंने तुर्कमेनिस्तान, चाइना से भी रिलेशंस बना के रखे, प्लस वेस्ट की साइड देखिए, वेस्ट यूरोप हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर ताजिकिस्तान के वेस्ट वाले से यूरोप का जो ये पार्ट है, इनसे भी इन्होंने अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखे, क्योंकि इनको रिक्वायर्ड थी, इंडिपेंडेंट होना इनके लिए इतना इजी नहीं था। डिसइंटीग्रेशन के बाद इनको हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो वो इन्हें इन जगहों से मिल रही थी, तो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का इन्होंने एडवांटेज लिया है डिसइंटीग्रेशन के बाद। I am reading that the Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with West, the US and China and others. Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic political difficulties. So इस disintegration के बाद हम देखते हैं अपने अपने motives थे, अपने interest थे, politically, socially, economically अलग अलग players emerge हुए हैं, अलग अलग countries emerge हुई हैं, इनके ideas अलग अलग थे, ठीक है, basically इनकी ideology एक ही follow करनी थी, वो capitalism थी। It is to these issues that now we turn. तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड अब आगे बढ़ रहा था आफ्टर, तो ये इसके अंडर consequences which important points we have discussed. So now, in a short, this was a detailed part. If you have to write the answer, you have to keep in mind when we talk about. There will be a 6 marks question. अगर आता है इससे तो most probably 6 marks आता है कि what were the consequences of disintegration of USSR, Soviet Union, या और भी तरीके से आ सकता है. So you will have to understand the question. तो end of Cold War इसको आप explain भी कर पाओगे. Confrontation, arm race, everything you will include here. The US became the sole superpower. It's understood. अगर disintegrate हो रहा है, एक दो की थी, एक खत्म हो गया. Of course, this will be the most superpower. Although world had the opportunity जहाँ पे multipolar world बना सकते थे हम इस point of time में, पर नहीं बना पाए. Unipolar world बना और किसके अंडर? US के अंडर, जो dominate करता था economically, socially, politically, culturally हर जगह. ठीक है? That is why it was called a sole superpower, जिसको हमने word दिया as unipolar world. ठीक है? कैपिटलिज्म became the dominant. शॉर्ट में लिखा मैंने तो अंडरस्टैंड है, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो. कैपिटलिज्म सबसे डोमिनेंट प्रूव हुआ. लिबरल डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइफ लोगों के लिए मानी गई. ठीक है, लास्ट के लिखा है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसी टाइम पे इमर्ज हुआ. और इनका क्या रोल था? इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया, लोन दिया किन कंट्रीज को? यूएसएसआर से, जो डिसइंटीग्रेट हुई थी शॉर्ट रिपब्लिक्स, टू एस्टैब्लिश देम, to transfer or या transform them from communalism to a capitalist society. उसके लिए जो लोन की जरूरत थी, इकोनॉमी की जरूरत थी, वो IMF और वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड करी. So this is all about the consequences of the USSR. ठीक है, एक बार take a reading of this entire paragraph. If any problem, you can ask here. Read it. I will ask anyone. Okay, good afternoon class. We will continue with the topics which we were covering. So in the morning we have taken the consequences of disintegration. I'm just revising it once again, short terms. For the consequences of disintegration, there can be a 4-mark question or a 6-mark question also, and also it can be in a form of a passage-based question. So I hope you have understood that, which points and which you have to keep in mind. It led to the end of Cold War. The US became the sole superpower. Capitalism became dominant all over the world, and the end of Soviet bloc, that is, countries were having independent aspirations to govern. Those were the members of USSR previously. And liberal democracy emerged as the best way to organize political and social life. And last point was the World Bank and International Monetary Fund emerged. So these are some of the important points which we have covered under the topic consequences of disintegration. अब उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक बुक में जो है व्हाट इज शॉक थेरेपी. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय शॉक थेरेपी? So the very important definition which you will give for this topic, what do you understand by the shock therapy? If you want to write, you can write it, underline भी कर सकते हैं, you will find it there. The painful process of, ऊपर लिखना है तो you can write the painful process of, है ये definition book में?
Is it there? The painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. Although this is a very short definition, but each and every word has a lot of significance and relevance of the USSR disintegration. So see it carefully now. A painful process. एक ये कैसी प्रोसेस थी? पेनफुल थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए पॉपुलेशन ने, सिटीजन्स ने उन रिपब्लिक्स की. इट वॉज अ ट्रांजेक्शन, शिफ्ट था एक कम्युनलिज्म से कैपिटलिस्ट की तरफ, बट इट वॉज पेनफुल, इट वॉज नॉट स्मूथ एट ऑल. बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम. जो सिस्टम था पहले कम्युनलिज्म था, वर्ड यूज करते हैं, बट इट वॉज अ अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम. अथॉरिटेरियन मींस पावर वर इन द वन हैंड, सेंट्रल में पावर थी सारी, ठीक है. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास थी सारी पावर्स? कम्युनिस्ट पार्टी के पास. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ टर्म अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम to a democratic capitalist system. Now they wanted to make a shift from this authoritarian socialist system to a democratic capitalist system which was followed in the West. That is US का जो alliance था, they were following this strategy. So इसमें इनको transition करना था, shift करना था, transform करना था. But this जो transaction was not smooth. It was very painful for the people or for the citizens of the republics of USSR. Okay, so now we will try to understand what were the problems that we are calling this process as a painful process for the citizens of USSR, of all the republics of USSR. तो ये definition learn करेंगे सबसे पहले. If it comes 2 marks में तो you will straightforward you will write this definition. देखो you will have to write some terms, जो बुक की लैंग्वेज है उसको यूज करना पड़ेगा. अगर आप सोचिए सब कुछ अपनी एक नॉर्मल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दोगे, although you will pass no problems, but you will not get that good marks. तभी you are coming here, prepare करो, बुक को रीड करो, see the terms which you can use in your answers. इतना इजी नहीं है कि यहाँ पे राम कहानी सुनाई, you will write according to your रामायण लिख दी. Okay, you will pass no problem, but you will not get good marks. Straightforward बोल रहा हूँ. When we are checking the sheets, जहाँ पहले आंसर चेक करते हैं, we come to know the status and the level of the student, किसने कितना पढ़ा हुआ है. उसका बुक की टर्म्स दिखने लगती हैं, बुक की थोड़ी सी लैंग्वेज दिखती है. ये नहीं बोल रहा रट लो वर्ड टू वर्ड, बट व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज यू मस्ट यूज द टर्म्स व्हिच आर देयर इन द बुक. सो सिंपल शॉक थेरेपी आता है तो बच्चे बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट इफ यू राइट दिस डेफिनेशन इट इज नॉट हार्ड एट ऑल. अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. ऑल्दो लगा हुआ डिफिकल्ट, अगर समझ जाओगे तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. Now moving forward, the model of transition from authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia, East Europe. Himanshu, if I say I'm talking about Russia, Central Asia and Eastern Europe, it means I'm talking about which alliance? USSR ना. एक जो ये था पूरा बना हुआ था बॉन्ड था, इसको मैंने ब्रेकअप करके दिखाया था. USSR तो था, बट उसके साथ क्या क्या था? एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है, एक कौन सा था? बाल्टिक स्टेट्स है, एक ईस्टर्न यूरोप है और बाकी रशिया. इन्होंने मिलकर यूएसएसआर को बनाया था. तो इसी में एक मॉडल आया था, मॉडल ऑफ ट्रांजैक्शन. इन्होंने ट्रांजैक्शन का करने का सोचा. दे वांटेड टू मेक अ शिफ्ट from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia and East Europe. So when you are talking about shock therapy, you will have to mention ये system, ये transaction किस part में हो रहा था world के हमारे? In Russia, Central Asia and East Europe under the influence of the World Bank and IMF. You will have to mention this. Shock therapy हो रही थी, transaction हो रहा था कम्युनलिज्म से capitalist states की तरफ. ये painful था और ये किस रीजन में हो रहा था? रशिया, हमारा ईस्टर्न यूरोप, बाल्टिक स्टेट्स एंड सेंट्रल एशिया विद द इन्फ्लुएंस ऑफ. पर ये इन्फ्लुएंस किससे थे? हम ठीक है, हम यूएसएसआर से ब्रेक अवे हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, पर एक बेस तो रहा होगा. उनको कौन सपोर्ट करेगा? तो विच वर द ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको सपोर्ट करने वाले थे? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जो उनको फाइनेंशियली लोन्स और सपोर्ट देने वाले थे, ताकि वो जो अपना ट्रांजैक्शन है अपनी कंट्री का इजीली स्मूथली कर पाए. तो उनका जो बेस था, जो इन्फ्लुएंस था, वो क्या था? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. याद रखेंगे. अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, बैकअप नहीं होता, तो दे वुड हैव थॉट अ लॉट कि इफ वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर हु विल बी गिविंग अस. कौन सी हेल्प मिलती थी उन्हें एज स्मॉल स्टेट्स को? जब हमने बताया अलायंसेस में इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, वेपन्स. तो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए व्हाट एवर रिसोर्सेज दे रिक्वायर्ड, उसके लिए कुछ तो बैकअप होना चाहिए था. पहले तो यूएसएसआर था, अब उससे अगर हम अलग हो रहे हैं, वी आर नॉट हैप्पी विद इट, आवर सिटीजंस आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो कुछ तो बेस हो. तो दैट बेस वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वेयर दे थॉट हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.
बट जैसा सोचा था इतना इजी वो ट्रांजेक्शन नहीं था, इट वाज वेरी पेनफुल. सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट वाज शॉक थेरेपी. वो पेनफुल था बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इट वाज अ पेनफुल ट्रांजेक्शन, विल रीड नाउ. उसमें एक इंपॉर्टेंट, हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, एक इंसिडेंट और है. आप लोगों ने वैसे तो एग्जाम दिए हैं तो यू ऑल नो दैट लार्जेस्ट ग्रास सेल, हमने इसको, हम जब भी पढ़ते हैं शॉक थेरेपी के बारे में तो एक इवेंट को हम याद रखते हैं, लार्जेस्ट ग्रास सेल इन द हिस्ट्री. आज तक हिस्ट्री में इतनी सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ सेल नहीं किया है. कबाड़ के भाव होते हैं, ऐसे कबाड़ को बेच देते हैं, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी यूएसएसआर की, उनको बहुत थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दिया था जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा था. उनकी जो वैल्यू थी बहुत हाई थी पर उनको अंडर वैल्यू में बेच दिया था उस टाइम पे, ठीक है. क्योंकि सिचुएशन इस टाइप की हो गई थी, कोलैप्स हो रहा था यूएसएसआर, सिचुएशन बहुत खराब थी. सारे सिटीजन्स जितनी भी रिपब्लिक्स थे वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे अपना कम्युनिज्म से कैपिटलिस्ट की तरफ. तो जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी दे वर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस. इसको हमने क्या बोला है, लार्जेस्ट ग्रास सेल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है. ग्रास सेल का मतलब समझ जाना, इंडस्ट्रीज को बहुत थ्रो अवे, बहुत कम दामों में बेच दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ओन करती थी ना यूएसएसआर में सब कुछ. पर क्या हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज उसे खरीद रही थी, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत थ्रो अवे प्राइसेस में उसे बेच दिया था. तो लार्जेस्ट ग्रास सेल, इट वाज रिजल्टेड ड्यू टू द शॉक थेरेपी. तो लार्जेस्ट ग्रास सेल जब भी हम टर्म यूज करेंगे, इट वाज द आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी. और शॉक थेरेपी क्या है, पेनफुल ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिस कम्युनलिस्ट टू अ कैपिटलिस्ट economy. So largest grass sale, it was resulted due to shock therapy to undervalue the valuable industries. जो valuable industries थी उनको क्या किया, undervalue कर दिया of the USR and to sell them at throwaway prices. याद रखिएगा, ठीक है. Effects of shock therapy. Effects of shock therapy means we are talking about the consequences of shock therapy on economy and people, ठीक है. तो first is, अब अगर आप लोगों ने वहां से पढ़ते आ रहे हैं गोरवाचे एंड डिसइंटीग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सब चीजें बहुत इजी आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि चीजें रिपीट हो गई. हमने इंसिडेंट बता दिया, अब इंसिडेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. एक सबसे पहले मैंने अभी बता दिया, वो क्या है, लार्जेस्ट ग्रास सेल ऑफ द हिस्ट्री where 90% of the USSR industries were sold to private individuals and companies at throwaway prices. सबसे पहला हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे. अगर इफेक्ट्स ऑफ थेरेपी का क्या पढ़ा, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, अराउंड 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज व्हिच वर ओन्ड बाय यूएसएसआर, मतलब गवर्नमेंट की थी जो, दोज वर सोल्ड टू द प्राइवेट ओनर्स और कंपनीज को एट थ्रोअवे प्राइस, बहुत कम प्राइस में वो बेच दी सारी. तो एक इफेक्ट तो ये हुआ शॉक थेरेपी का. तो लार्ज ग्रास सेल याद रखेंगे. देन रूबल, करेंसी क्या था रशिया की, रूबल, ठीक है, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली, उसकी जो वैल्यू है बहुत कम हो गई. वी हैव आल्सो टॉक, जब हम पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में आते थे, हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे हम बता रहे थे इंडियन रुपए की वैल्यू बहुत कम कर दी थी. इन टर्म्स ऑफ दैट क्या एक्सप्लेन किया था खुशी मैंने, जो चीज रुपीस पहले क्या 5 में मिलती थी, वही चीज अब हम कितने में खरीद रहे थे, 7 रुपीज में या 8 रुपीज में. इन द सेम वे अगर मैं रुपी, एक बात कर देता हूँ, अगर मैं एक पेन वहां पर रेस्टोरेंट में खरीद रहा था, पहले मैं 10 रुपीज का खरीद रहा था, और वही पेन, ये एक पेन था 10 रुपीज का था, और वही पेन हो सकता है मैं 20 का खरीद रहा हूँ, सेम पेन. तो इसमें क्या हो गया, 20 खरीदा तो मतलब रूबल की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, चीजें महंगी मिलने लगी हैं. 10 रुपए में कोई चीज मिलती थी, अब वही चीज कितने मिल रही है, 20 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं मुझे उसी अमाउंट के लिए. इट मींस रूबल की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई. अपोजिट होता है, इसमें सीखना पड़ेगा कि इसमें नंबर बढ़ रहा है बट क्वांटिटी सेम है, तो इट मींस वैल्यू डिक्लाइन हो रही है. तो सेकंड जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है, इंपैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी होगा, पहला बता दिया, लार्जेस्ट ग्रास सेल इन द हिस्ट्री, एंड दूसरा इज रूबल जो करेंसी थी रशिया की, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली. इन्फ्लेशन वेंट सो हाई दैट द पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स. अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इट्स इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, महंगाई है ना, प्राइसेस राइज हो जाना. तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था. एंड देयर कैन बी मेनी रीजंस. हमें पता है इंडस्ट्रीज बिक गई हैं, सोल्ड अवे हो चुकी हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी कोलैप्स तो हो ही चुका है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हमने शटर कर दिया है. तो क्या होंगे, जो कॉमन प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे. तो इन्फ्लेशन आता है, स्टेट आ जाएगा सारी रिपब्लिक्स में फिलहाल, क्योंकि ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है. जो कॉन्सिक्वेंसेस हम दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं पेनफुल क्यों था, क्योंकि ये सब सिचुएशंस चल रही थी रशिया में और अदर रिपब्लिक्स में, जब हम ट्रांजैक्शन शिफ्ट कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को फ्रॉम दिस कम्युनलिज्म एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी से किस तरफ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ. तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी. इन्फ्लेशन भी आ गया, करेंसी की भी डिक्लाइन कर गई,
लार्जेस्ट ग्लास सेल की वजह से हो रहा था, इंडस्ट्रीज बिक चुकी थी तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा था. Then government reduced subsidies and social welfare and discarded their this caused large public to poverty. अब क्या हो गया? पहले I told you this USSR society was based on the idea of equality where everyone was provided food, employment and health, education. ठीक है, ये सब चीजें सबको प्रोवाइड की जाती थी बट विद इक्वालिटी. बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट क्योंकि बहुत सप्रेस भी किया जाता था. दे वर नॉट हैविंग लिबरल डेमोक्रेसी एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं थी वहां पर, तो ये लोगों को प्रॉब्लम होती थी. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या की, ये सब चीजें क्या कर दी, सस्पेंड कर दी क्योंकि दे वर मेकिंग अ शिफ्ट टू प्राइवेटाइजेशन. तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या हो गया, खत्म हो गया. तो जो गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज पुअर लोगों को देती थी वो सब्सिडीज क्या हो गई, फिलहाल खत्म हो गई थी. जब सब्सिडीज बंद कर दी है तो पीपल जो पुअर थे दे वर पुश्ड मोर इनटू पॉवर्टी. तो और ज्यादा पॉवर्टी हो गई इस टाइम पे इन रिपब्लिक्स में, क्योंकि जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी एक पॉपुलेशन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी या पॉवर्टी लाइन में थे, वैसे तो इक्वालिटी पे था, वो लोग और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ड्यूरिंग दिस शॉक थेरेपी. आई एम रीडिंग दैट अगेन. गवर्नमेंट विड्रॉ सब्सिडीज एंड सोशल वेलफेयर वाज डिस्कार्डेड. दिस पुश्ड लार्ज पब्लिक टू पॉवर्टी. पहले पॉवर्टी नहीं थी, एक इक्वालिटी मेंटेन करने की थी, बट अब पॉवर्टी हो रही थी वहां पर. अब ऐसी सिचुएशन में व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट इनटू एक्शन, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का रोल बढ़ता है. वो कौन है, माफिया इमर्ज्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीडिंग टू इंक्रीजिंग क्राइम रेट. अब वहां पे करप्शन, क्राइम इंक्रीज होने लगा बिकॉज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर कंट्रोल्ड बाय द माफियाज. ओके, माफियाज वर्ड समझ आता है, कुछ लोग जो प्राइवेट लोग इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो माफियाज इमर्ज होगा, ये याद रखिएगा हमेशा. आपने शॉक थेरेपी का जब पढ़ेंगे, माफियाज यहाँ पर इमर्ज हो जाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगते हैं. और जब ये लोग कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज्यादा क्राइम का रेट यूएसएसआर या इन रिपब्लिक्स में बढ़ जाता है, क्राइम बहुत होने लगते हैं. ठीक है, हाफ ऑफ रशियन बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर बैंकरप्ट. जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक्स थे रशिया के एंड अदर रिपब्लिक्स थे, वो क्या हो गए थे, बैंकरप्ट. दे वर नॉट हैविंग एनी मनी टू सपोर्ट एनी पॉपुलेशन. जो लोग इन्वेस्टमेंट्स थे, जो अलायंसेस बने हुए थे बैंक्स के, सब कुछ शटर हो गए थे विद दिस शॉक थेरेपी. सो दीज वर सम ऑफ द आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी ड्यूरिंग दिस व्हाट वी आर स्टडीइंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन का एक तो आउटकम ये भी हो गया शॉक थेरेपी, प्लस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस एंड जो मैंने अभी रीड किए हैं. So these were the important points which I have taken from your book. So you need to take a reading, quick reading, and you will be able to understand this. So please read it. If anyone is having any problem, then you can ask me here only. जितना पढ़ाया उतना ही कवर करना पड़ेगा. जो शॉक थेरेपी वाला है, the consequences of shock therapy, you will find all the points there.